لہذا آج کے پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں شاہد قاضی جو کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے ایک متحرک فعال اور سرگرم رکن ہیں، ابھی حال میں آپ کی نگہبانی میں، آپ کی زیر نگرانی کوپل اور ہبلی میں بہت ہی شاندار آل انڈیا مشاعرے منعقد ہوئے، جس سے واقعی اکیڈمی کا شہرہ ہوا. یہ صحرا آپ شاہد قاضی کے سر جاتا ہے. میں آپ سے خواہش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. شاہد قاضی. بہت شکریہ. آج کی اس خاص پروگرام میں، جس میں کشمیر کی مشہور ڈاکٹر شبنم عشائیہ سے ملاقات کا ایک شرف حاصل ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو کافی دنوں سے انتظار بھی تھا. محترمہ شائستہ یوسف اس تعلق سے کافی سرگرم تھی اس پروگرام کو کرنے کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے، کوریج کے ذریعے اور بھی لوگوں تک یہ پہنچے. میں اس خاص پروگرام میں ڈاکٹر شبنم عشائیہ کا استقبال کرتا ہوں. زمین ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں. اس پروگرام میں ریٹائرڈ ڈی سی پی این ڈی ملا صاحب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں، اور ڈاکٹر زبیدہ بیگم جو محفل نساء کی نائب صدر ہیں، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. ڈاکٹر شبنم عشائی کی تہنیت پیش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر شائستہ یوسف اور تمام لوگوں سے گزارش ہے. اور اس کے بعد علمین ایجوکیشن سوسائٹی کے ڈاکٹر عمر اسماعیل. این ڈی ملا صاحب کی تہنیت پیش کی جا رہی ہے. جاوید صاحب تہنیت پیش کریں. محفل نساء کی نائب صدر ڈاکٹر زبیدہ بیگم کی تہنیت پیش کریں. اب میں محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ سے خواہش کروں گا کہ وہ اظہار خیال کریں. اس سے پہلے کہ وہ مائک پر آئیں، میں آپ کا ہلکا سا تعارف کرانا چاہوں گا. محترمہ شائستہ یوسف محفل نساء کی صدر، نہایت ہی متحرک فعال شخصیت، اردو کے فروغ کے سلسلے میں حوالے سے آپ کی شخصیت نہ صرف کرناٹک میں بلکہ ملک بھر میں آپ کی شخصیت بڑی معروف اور مشہور ہے. بالخصوص آپ نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج میں نمایاں رول ادا کیا ہے، اور آپ ایک شاعرہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. آپ کا پہلا شعری مجموعہ گلِ خضرو منظر عام پر آیا اور ادبی حلقوں میں خوب داد و تحسین حاصل کی، اس کی خوب پذیرائی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے کچھ نثری کام بھی کیا. جہاں تک مجھے یاد ہے جناب محمود ایاز کے شخصیت پر آپ نے قلم اٹھایا تھا، اس کی بھی خوب پذیرائی ہوئی. اور ایک اب جو آپ کام کرنے جا رہی ہیں قابل قدر اور قابل ذکر ہے، یعنی ایک ناول صدیوں کا رقص. آپ کتاب کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں مواد کیا ہوگا. یعنی ازل سے آج تک صدیوں کا گزر، یعنی اس ناول کے اطراف یوں سمجھے کہ صدیاں رقص کر رہی ہیں. آپ نے کچھ اس کا ایک حصہ مجھے سنایا تھا. سننے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کا اسلوب نہایت ہی فلسفیانہ اور صوفیانہ ہے. یہ آپ کے مزاج میں رچی بچی چیز ہے صوفیزم. آپ کو تصوف سے گہرا لگاؤ ہے، گہرا شغف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی قابل قدر اور قابل تقلید کام کرنے جا رہی ہیں اردو کے تعلق سے ایک جشن، وہ بھی نہایت عالیشان پیمانے پر، جو آپ اپنی مثال ہوگا.
हम भी आपके साथ हैं। काम बहुत बड़ा है और हम लोगों के साथ हो सकता है उसमें कुछ आसानियाँ पैदा करें। हम आपके साथ हैं मैडम। मैं चाहूँगा शाइस्ता मैडम से कि वो अपने ख़यालात के इज़हार के साथ अपनी कुछ तख्लीक़ात भी नज़र करें। शानशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात और कश्मीर से आई हुई उर्दू की शायरा शबनम ईशाई और तमाम हाज़रीन, शायरी आप लोग जानते हैं कि क्या है और आप लोग उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। गज़ल का शौरा तो बहुत सुना है, लेकिन नज़्म कब से पॉपुलर हुई ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। नज़्म की शायरा खुसूसन पहचानी जाती हैं शबनम ईशाई साहिबा, और नज़्म का जब से आगाज़ हुआ उस वक्त नज़्म हमेशा पाबंद हुआ करती थी, लेकिन मीरा जी के बाद और अख्तरुल ईमान के बाद नज़्म नसरी नज़्म भी हो गई और आज़ाद नज़्म भी हो गई। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो एकेडमिक बातें हो जाएंगी, और फिर डॉक्टर जुबैदा साहिबा भी बताने जा रही हैं बहुत सारी बातें। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी बात को चेयरमैन साहब ने सुना और मेंबरान में भी इससे इत्तेफाक किया। दरअसल अदब किसी तक़सीम को नहीं मानता, अदब किसी इलाक़े को नहीं मानता, अदब बाउंड्रीज़ को नहीं मानता, बल्कि अदब एक ही काफ़िले में सबके साथ चलता है और अदब का अपना काफ़िला होता है जिसमें हर रंग के, हर नस्ल के, हर जगह के, बल्कि आलम के तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। वो इंटेलेक्चुअल हों या अदबी सफ़ में हों, शायरी कर रहे हों या नसर कह रहे हो या नज़्म कह रहे हो, सभी इस कारवां के मुसाफिर होते हैं। और इसीलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक में अलग बात क्या होती है। खुसूसन अदब जो है वो इजहार करता है उस अहद का, उस वक्त का, कि उस इलाक़े में कैसी बातें होती थी, उस इलाक़े में क्या क्या हुआ और कितने हादसात हुए, कितने वाक़यात हुए, उसका असर लिखने पढ़ने वालों पर क्या पड़ा था और उन्होंने अपनी नस्र में हो या नज़्म में हो किस तरह अदा किया। और सबसे बड़ी बात कि शायर जो होता है वो बहुत नाजुक मिजाज होता है। वो हर दुख दर्द को समझता है और चाहता है कि लफ्ज़ों के ज़रिए उसको बयान करे। जैसा कि आपने सुना होगा कि कामियों ने कहा कि सिसिफस की कहानी, सिसिफस एक मिथ है, लेकिन उस कहानी में ये कहा जाता है कि सिसिफस रोज़ाना पहाड़ चढ़ता है, एक पहाड़ पर चट्टान को धकेलता हुआ जाता है, चोटी तक पहुंचता है, फिर दोबारा लौट जाता है। दरअसल इस फ़लसफ़े में ये दिखाया गया है कि ज़िंदगी जो है वो हम रोज़ाना अलग अलग दौर से गुज़रते हैं, खुशी से, गम से। हम सोचते हैं कि इतना दुख दर्द हम उठा सकेंगे, खींच सकेंगे, जा सकेंगे, लेकिन लौट कर जब वापस आते हैं तो सोचते हैं अब थक चुके हैं, मगर दूसरे दिन दोबारा दिन शुरू होता है और हम फिर चढ़ने लगते हैं। इसी बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक छोटी सी अच्छी मिसाल देकर समझाया था। एक कहानी बताई उन्होंने कि एक मुसाफिर अपने घोड़े को लेकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में घोड़े को प्यास लगी, तो उसने कहा कि इसको पानी पिलाने की ज़रूरत है। तो रहट चल रहा था, कुआं था सामने, तो कहा कि जाइए कुएं से पानी नदी बह रहा है, वहाँ पर उनसे कहिए कि रहट से आ जाएगा तो पानी घोड़ा पी सकेगा। जब वो घोड़े को लेकर रहट के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि घोड़ा रहट की आवाज़ से बहक जाता है। तब रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि जिसको पानी पीना होता है, जो रहट की आवाज़ से नहीं घबराएगा, वही ज़िंदगी में आगे जाएगा। तो जब बिदक जाएगा तो वो वहाँ से उसको पानी को हासिल नहीं कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने मिसाल ये दी कि ज़िंदगी में अपने पास खुशी हो कि गम, कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, जो कुछ हो, लेकिन इंसान सब्र से काम ले, मोहब्बत से काम ले, समझ से काम ले, तो उसको ज़िंदगी गुजारनी है। फिर ये भी बताते हैं कि देखिए, पिंजरे में हो परिंदा या बाहर हो, पिंजरे वाला समझता है कि आज़ाद परिंदा बहुत खुश होगा
اور آزاد پرندہ سمجھتا ہے کہ پنجرے والے کو تو بہت آسانیاں ہیں، اس کو کوئی کھائے گا نہیں، یا آرام سے بیٹھا رہا ہوگا۔ تو یہاں پر دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی بہت آرام سے بہت مزے کر رہا ہے، لیکن جو جہاں ہوتا ہے اس مقام کی اپنی مشکلیں بھی ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو زندگی کو آسان بنانے کا سبق بہت سارے صوفیوں نے بھی بتایا، فلسفیوں نے بتایا، لیکن تمام باتیں جاننے اور سننے کے باوجود بھی جب تک انسان اچھے بری جگہ اپنے طور پر تجربات سے نہیں گزرتا وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہر انسان جو بھی لکھتا ہے، جس طرح کی بات کرتا ہے، اس کا اپنا تجربہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی نرمی سے کہتا ہے، کوئی غصے سے کہتا ہے، لیکن وہ باتیں جس زبان میں بھی کہی جائیں آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو پھر ہم بھی اس کے تجربے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے شبنم اشائی صاحبہ کی نظمیں سنی ہیں، واقعی ان کی نظمیں ایسی ہیں جو دل کو لگیں۔ آپ لوگ بھی ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں کیسا ماحول رہتا ہے، اس کرفیو سے لوگ کیسے گزرتے ہیں، وہاں کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اتنی خوبصورت وادیاں ہوتے ہوئے بھی دل دھڑکتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے منزل پر کیا ہوگا۔ یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہماری ہتھیلیوں پر ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، خوشی کی بھی اور غم کی بھی۔ تو لمحوں میں بھی ہمیں جیتنا سیکھنا ہے، ماضی میں بھی، اور آئندہ آنے والے لمحوں کو بھی جاننا ہے۔ لیکن سب سے بڑا پل وہ ہوتا ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔ ہم اصل میں گزرنے والے پل کی بہت عزت نہیں کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ شاید ہم کو اس سے زیادہ خوشی ملے گی، شاید ہم نے پہلے ماضی میں بہت خوشی حاصل کی تھی۔ حقیقت میں گزرنے والے پل سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نے جب تک زندہ رکھا ہے، اب یہ ہمارا پل ہے، زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو ہمیں ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ ہنس کر گزارنا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر چلنا ہے، ساتھ دینا ہے۔ سب کا یہی شاعری سکھاتی ہے اور یہی ہمارا راستہ بھی ہے۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ قدردان ہیں، اور میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کم از کم ہماری آواز پہ آ جائیں۔ نظم آپ کو سناؤں گی، اس کا عنوان ہے قبیلے کے لوگ۔ میں ان تمام آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے سمندر کے جھاگ کو بادلوں سے اجلا دیکھا، اس نیلگوں سمندر کو، اس نیلگوں آسماں کو جسے سمندری لہروں کی انگلیاں رنگوں میں اچھالتی تھیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں جل پریوں کو جو شفاف پتھروں پر بے خوف لیٹتی تھیں۔ میں ملنا چاہتی ہوں ان سے جن کی بازگشت سے سماعتیں جاگ اٹھتی تھیں۔ میں ملنا چاہتی ہوں ان عاشقوں سے جو اپنی نیند کو غاروں میں دفن کر چکے ہیں۔ میں ان آنکھوں سے نور سمیٹنا چاہتی ہوں جن کی آنکھوں میں شاہوں نے سلائیاں پھیر دیں۔ ان قدموں کی خاک کو اپنی مشکاں سے چھونا چاہتی ہوں جو انالحق کے کلمے کو سوئے دار لے گئے۔ ڈھونڈ رہی ہوں وہ آنکھیں جو ناانصافیوں کو اندھا کر سکیں، ایسی آنکھیں جن کی بے زبانی نے صدیوں کی خاموشی میں شعلے بھڑکائے اور خود خاک ہو گئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترمہ شائستہ یوسف صاحبہ۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کا خطاب فلسفیانہ اور صوفیانہ انداز میں، رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہرحال آپ نے کچھ نظموں کے حوالے سے اپنا خطاب کا آغاز کیا تھا۔ بہرحال آپ نے بڑی اچھی چیزیں ہمارے سامنے رکھی اور نظم بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوب سنائی۔ آج کے مہمان جو ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، میں کشمیر کے تعلق سے 2 جملے آپ کے تعلق کے گوشگزار کرنا چاہوں گا۔ یہ خطہ کشمیر کا ہے، یہ خطہ کشمیر کا ہے، جنت کی ہے تصویر، اس کے ہر ذرے پر محبت کی اور انسانیت کی داستان تحریر ہے۔
وادی کشمیر قدرت کے حسین مناظر، برف کی چادر اوڑھے ہوئے کوہسار، صاف شفاف پانی والی جھیلیں، اور یہاں کے خوبصورت گورے چٹے لوگ، یہاں کا تہذیب، یہاں کا تمدن، بہرحال ہر چیز یہاں کی مختلف ہے، منفرد ہے. اس لیے حضرت امیر خسرو نے کہا اگر فردوس بر روی زمیں است، اگر فردوس بر روی زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. اگر روی زمین پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. واقعی امیر خسرو نے بہت خوب کہا اور یہ حقیقت بھی ہے. اب میں محترمہ زبیدہ بیگم سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان کا تعارف پیش کریں. اس سے پہلے کہ آپ آئیں، میں زبیدہ بیگم صاحبہ کے تعلق سے ایک دو جملے کہنا چاہوں گا. آپ اردو کی پروفیسر رہی ہیں. میں شاید آپ بھول گئی ہوں لیکن مجھے یاد ہے آپ پیروڈی بہت اچھا کہتی ہیں، یاد ہوگا. ہمارا ابھی ابتدائی سفر تھا شاعری کا، تو اکثر میڈم کی کہی ہوئی پیروڈیاں سنا کرتے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے کو جاری کریں کیونکہ بہت سارے لوگ اس فن سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جناب ملن صاحب نے اس کی شروعات کی ہے اور غضنفر اقبال جو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہیں. میں میڈم سے بھی خواہش کروں گا کہ وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھیں کیونکہ لوگ اس فن سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ مہمان کا تعارف پیش کریں. محترمہ زبیدہ بیگم صاحبہ. بہت بہت شکریہ جناب جامی صاحب کا کہ مجھے اپنے گزشتہ دنوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. مجھ سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ میں آج ہماری خاص مہمان ڈاکٹر شبنم شائی صاحبہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. شہنشین پر رونق بڑھانے والے الامین ایجوکیشن گروپ کے چیئرمین جناب اسماعیل عمر صاحب، جناب این ڈی ملا صاحب فارمر ڈی سی پی، اور آج کے اس خصوصی اجلاس کی مہمان نسائی شاعری کی معتبر آواز ڈاکٹر شبنم شائی صاحبہ، محفل نساء کی سرخیل اور سالار کارواں ڈاکٹر شائستہ یوسف صاحبہ، اکیڈمی کے قابل احترام ممبران اور آف دا ڈیاس شہر گلستان کے علم پرور نامی گرامی شخصیات، معزز خواتین و حضرات، آج میرے لیے اس حال میں موجود تمام احباب کے لیے بھی یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک منفرد و معتبر شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی تعریف یا تعارف میں اردو شعر و ادب کی بڑی شخصیات اور بڑے ناقدین نے بڑی وقیع اور مفصل باتیں بھی کہی ہیں اور لکھی ہیں. ڈاکٹر شبنم شائی کا تعارف کرانا میرے لیے ایک نہایت خوشگوار فریضے سے بڑھ کر ہمارے عہد کی ایک ایسی شاعرہ کے شعری سفر سے ہم تمام کو روشناس ہونے کا موقع بھی ہے. آپ کے شعری افق کے وقی کینوس میں عورت کی ذات کے سفر مسلسل اور اس کے ہوش ربا مدارج اور اس کے مد و جزر کا احساس کرانا بھی ہے. شبنم شائی کی ولادت 12 اپریل 1962 کو کشمیر جنت نظیر کے ایک چھوٹے سے قصبے تاپر پٹن کے جاگیردارانہ گھرانے میں ہوئی. اشائی کا بچپن ایک ذہین و فطین لاڈلی بیٹی کا بچپن رہا. اشائی کا تعلق کشمیر کے ایک صوفی خانوادے سے بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کاموں کے فلسفہ وجودیت کو کنگھالنے کے باوجود آپ کے ہاں ذات و صفات آپ کی نظموں میں جھلکتی ہے جس سے کائنات کی رنگ آمیزی کا وہ بنیادی سبب ہی نہیں، اس کی فکری اساس اور تاریخی شعور و تہذیبی بانکپن ہماری فکر و نظر کو سرشار کرتی ہے. آپ کی پہلی نظم علی گڑھ کے طالب علمی کے دور میں لکھی جانے والی تھی جو کالج میگزین پامپوش میں شائع ہوئی اور پسندیدگی کی نظروں سے دیکھی گئی. ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ کی جھلک ہمیں یہیں دکھائی دے جاتی ہے.
इस नज़्म का उन्वान भी अशाई ने खुद फरामोशी रखा, लेकिन उस नज़्म के बाद आपके कुल 12 नज़्मों के मजमूओं में कहीं कोई किसी नज़्म का हमें कोई उन्वान दिखाई नहीं देता। और उसके जवाब में खुद अशाई साहबा का कहना है कि शायरी उनके नज़दीक उस अलमिये और सदमे की बाज़याफ्त का नाम है जो रोज़े अज़ल से हुआ, और उसी सदमे की तमाज़त आपकी शायरी में नित नए ज़ावियों से हुएदा भी है। अशाई ने अपना सारा इल्म, सारा तजुर्बा, सारे मुशाहिदात, सोच, फ़िक्र और तसव्वुफ़ औरत के अबदी दुख दर्द, उसके तन्हाई के कर्बनाक एहसास को कुछ ऐसी खूबसूरती के साथ नज़्मों में मुंतकिल किया है कि ये उनकी शख्सियत का इशारिया बन गई हैं। शबनम की नज़्में सवानी अनासिर से लबरेज़ हैं। जिन वारदातों सानहों से अशाई गुज़रती रहीं, उन्हें नज़्म में अज़ खुद ढल जाने का हुनर खूब आता है। इसीलिए हामिदी काश्मीरी ने लिखा है कि उनकी नज़्में इक्तिसाबी नहीं बल्कि कशफी तौर पर वजूद पजीर हुई हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनकी नज़्म निगारी उनके वजूद के साथ क़ल्ब हुई है। शबनम अशाई निसाइयत की नूह-ख्वाह भी हैं, और वो बरमला ये इकरार करती हैं कि उनकी मैं आवाज़ है, लिहाजा उनकी नज़्में वो नवा हैं जिसमें निसाई हिस्सियत की आतिश नवाई छुपी हुई है। ये निसाई ज़ात की वो आवाज़ है जो सदियों खामोश रहने के जब्र से कुतबुदा कर बोल पड़ी है। एहसास उन्हें हर लम्हा मुस्महिल और बेहैसियत करता रहता है कि ताबेदारी, फरमाबरदारी और ईसार ही औरत का मुक़द्दर और मक़दूर है। इसीलिए जयंत परमार ने कहीं लिखा है कि शबनम शाई की नज़्में सच की तरह उनकी नज़्में ज़ात का इक़रारनामा हैं। शबनम शाई के कैनवस पर औरत और उसके दुख दर्द बिखरे हुए हैं, लेकिन वो फेमिनिस्ट नहीं है और ना ही उनकी नज़्में फेमिनिज़्म के ज़ेर असर लिखे जाने वाली नज़्मों की ज़ैल में आती हैं। इस हवाले से मैं सिर्फ अताउल हक कासमी का इक़्तिबास दोहराना काफ़ी समझती हूँ। वो लिखते हैं, शबनम की शायरी में यकीनन औरत के सभी दुख मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि कलकत्ते में मौजूदगी के दौरान जब उसके वालिद ने श्रीनगर से ये इत्तला दी कि बुज़ुर्ग खान सामा जिसकी सारी उम्र तजर्रुद में गुजरी फौत हो गया है, तो वो घंटों फूट फूट कर रोती रही, मरने वाला तो मर्द था। उन्होंने बहुत दुरुस्त बात कही है कि शबनम की सारी शायरी बुनियादी तौर पर हिज्र की शायरी है। वो ये मज़मून सौरंग से बांधती हैं और हर मर्तबा दर्द की एक शदीद लहर पड़ने वालों में मुंतकिल करती चली जाती हैं। ये नज़्म देखिए, ऐ दुख मैं कोई लफ्ज़ नहीं और न कागज़ हूँ जो तुम मुझ में बार बार पनाह लेते हो, मखरूज़ हूँ ज़िंदगी की और तुमसे भर गई हूँ। तू ही बता ऐ दुख, ज़िंदगी का ख़र्ज़ कौन उतारेगा, मन भर तुम्हारी सुकूनत है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि शाई ने अपने तख्लीक़ी मलाल और अफसुर्दगी को कहीं बेकाबू नहीं होने दिया। एक सोचे समझे सब्र ज़ब्त का एहसास उनके बयान और इजहार का नुमाया वस्फ़ है, और यही वजह है कि उनकी शायरी हमारे अहद के हावी अंसर यानी बरहमी, जलाल और इश्तियाल से आरी है। शमीम हनफी का मानना भी यही है कि अशाई की शायरी इस अहद के संजीदा तख्लीक़ी माशरे में उनकी शमूलियत ये वक़ी तजुर्बे से ताबीर करते हुए शमीम हनफी साहब ने भी उनकी शायरी से मुतालिक बड़े गरां क़दर अपनी राय का इजहार किया है। और साथ ये भी कि उनकी शायरी पर एक तवील मुसलसिल जारी मुकालमे का गुमान होता है, और ये मुकालमा एक साथ कई जिहतें रखता है। कभी वो अपने आप से बातें करती हैं, कभी अपनी दुनिया से, कभी भेदों भरी उस ताकत से जो हमारे वजूद पर हावी है। सामईन, आइए इस मुनफरिद
और मोतबर शायरा से खुद आपके लब व लहजे में सुनते हैं और सर धुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा जुबैदा बेगम साहबा। आपको सुनने के बाद इस बात पर यकीन कर लेना ज़रूरी होता है कि उर्दू वाकई कानों में रस खोलने वाली ज़बान है। निहायत ही उम्दा लहजे में, निहायत ही शाइस्ता लहजे में आपने खिताब किया। मुझे एक शेर याद आता है, शुस्ता ज़बां शुगुफ्ता बयां होंठ गुलफिशां, शुस्ता ज़बां शुगुफ्ता बयां होंठ गुलफिशां, तुझ में तमाम खूबियाँ उर्दू ज़बान की हैं। यानी यहाँ शायर अपनी महबूबा की तारीफ़ उर्दू ज़बान के मवाज़ने से करता है कि अपने महबूब में वो उर्दू ज़बान की तमाम खूबियाँ पा रहा है। बहरहाल बहुत ही मौसर अंदाज में मोहतरमा ने हमें खिताब किया। अब मैं हिंदी मुल्ला साहब से, आप निहायत ही खुश मिजाज इंसान हैं और बहुत ही इंसान दोस्त हैं, और आपको उर्दू ज़बान और अदब से वालिहाना इश्क है, वालिहाना मोहब्बत करते हैं आप उर्दू ज़बान और अदब से, और आपका मुतालिया भी काफ़ी वसी है। और सबसे बड़ी बात अहम ये कि आपको गीत और संगीत से वालिहाना मोहब्बत, यानी बेइंतहा मोहब्बत है। और सुनने में भी आता है कि आप अपने घर पर अक्सर मौसीकी की महफिल सजाते हैं। मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि वो आएँ और मुख्तसर ही सही अपने ख़यालात का इज़हार करें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जामी साहब से सुन के पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सब क्वालिटी मुझ में है वरना तो मैं एक पुलिस अफसर कहाँ करूँगा। है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी। किसका शायर था शाइस्ता जी, मोहतरमा हसरत मोहानी का। और फिर पहली बार मुझे जामी साहब से मुझे पता चला कि ये अमीर खुसरो का अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। तो ये हमें पहले से सिखाया गया था कि जहांगीर जब पहली बार कश्मीर गए थे उन्होंने ये शेर पढ़ा था। मुझे आज पता चला कि अमीर खुसरो का है। बहरहाल कश्मीर की खूबसूरती का कोई वो नहीं है। सबसे पहली बात तो उर्दू के अल्फाज से ही रस घोलता है, एक हल्का सा ठंडक महसूस होती है। फिर उसके बाद में उर्दू की शायरी, फिर उसके बाद में कश्मीर, और उसके बाद में शबनम, और फिर उसके बाद में सोने पे सुहागा शाइस्तगी। अब अंदाजा करो ये महफिल कैसी होगी। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो क्या कहते हैं कन्नड़ा में एक लफ्ज है अड़ीलू सेवे करके, अड़ीलू सेवे हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। बेचारी मेहनत करती रहती हैं। फैज का वो एक शेर है, एक शेर क्या एक मिसरा पढ़ता हूँ मैं, वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले। तो उर्दू के चाहने वाले बहुत कम हैं, चंद वही काफ़ी हैं। बहुत हैं जुल्म के दस्ते, बहुत हैं जुल्म के दस्ते जफा के लिए, वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले। जो चाहने वाले जो चंद भी हैं वो भी बहुत हैं। मोहतरमा को नहीं जानता, कभी पढ़ा नहीं हो। अब इतना तोइल नहीं मगर बहुत डिफिकल्ट इंट्रोडक्शन था उनकी शायरी का, बहुत अच्छा था। अल्फाज समझ में नहीं आए मगर अच्छा लगा सुनने में। वो नग़्मगी जो है, नग़्मगी उर्दू की नग़्मगी। बहरहाल मोहतरमा को देखते हुए लगता है कि अच्छा ही कहती होंगी, और कश्मीर से है तो अच्छा ही। और फिर शाइस्ता ने बहुत एहतमाम किया था। दो खूबसूरत लड़कियों को कश्मीरी लिबास में काविश की है उन्होंने। अकेली करती रहती है, अकेली कुछ न कुछ करती है। अब देखो नहीं जानता हूँ नया साहब को कौन नहीं जानता, नयाज एक हीरो है, उनको कौन नहीं जानेगा। और फिर यहाँ पे मेरी एक फेवरेट सिंगर भी आई हुई है, मधु का कन्नड़ा उर्दू तर्जुमा शहद होता है। उसकी आवाज़ आप सुनेंगे लगेगा कि शायद पता नहीं उनके वालिद बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो लड़की कहीं गई हुई है, आएगी वो स्टेज पे आएगी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत शाइस्तगी से शाइस्ता ही कर सकती हैं, तो उन्होंने किया है। हम महफूज होंगे। शुक्रिया। एक सच कहा था ना कि आपको ज़बान व अदब से निहायत शगफ़ है और मुतालिया भी आपका काफ़ी वसी है। अब मैं गुजारिश करता हूँ
हमारे एक और मेहमान ख़ुसूसी उमर इस्माइल ख़ान साहब से, जो कि अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप आएँ, एक दो चार जुमले पेश करें। Respected dignitaries on the dais, मैं अल-अमीन मूवमेंट का इतना तारुफ करता हूँ। 1966 में मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान तृष्णापल्ली से मद्रास में मेडिकल फिनिश करके बेंगलोर में आए। वालिदा से बेंगलोर में शादी हुई और यहाँ से अल-अमीन मूवमेंट शुरू हुआ। मेरे नाना का घर खलासपालिया में था, वहाँ पे अल-अमीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज उनके घर में शुरू हुई, उनके बंगले में शुरू हुई। वही हॉल में लैब हुआ, किचन में वालिद साहब की ऑफिस थी, ऐसा शुरू हुआ। फिर 2 साल के बाद अजीज़ सेठ साहब, जो लाल बाग के सामने जो जगह है, जो हैदर अली साहब टीपू सुल्तान के वालिद साहब जो इनाम में वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनको दी थी, उस जगह पे अल-अमीन को शिफ्ट किया और वहाँ से हम तकरीबन 50 साल से अल-अमीन इदारा वहाँ चला रहे हैं। ये अल-अमीन मूवमेंट और एजुकेशन कैसा वालिद साहब के पास आया, ये मेरे दादा अब वही इस्माइल ख़ान साहब 1925 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तृष्णापल्ली से पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने लॉ किया। मेरी दादी माँ वो बेंगलोर में थे, उनके वालिद रेलवेज़ में थे, उन्होंने भी उसी वक्त AMU में भी पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो समझो 1925 में उधर थे वो लोग। तो वहाँ पे मेरी दादी माँ 1925 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए जी। तो वहाँ से फर्स्ट आए उनका, तो लोग वहाँ से ना बहुत से लड़के भी नाराज़ हो गए कि एक लड़की जो है फर्स्ट आए यूनिवर्सिटी में वगैरह। मगर मेरे दादा जो है वापस आए और बेंगलोर तृष्णापल्ली से वापस बेंगलोर को आए और रिश्ता लेकर गए और वहाँ से दादी माँ की शादी हुई। दादी माँ फिर वापस तृष्णापल्ली चले गए थे। हालांकि हमारे दादी माँ बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन वो शादी के बाद वहीं पे थे तृष्णापल्ली में। गांव बड़ी, अब अभी भी गए तो आपको देखेंगे कि कितना पिछड़ा इलाका है, फिर भी वहीं पे अपनी ज़िंदगी गुजरी। तो वो जो लोग बोलते हैं, ख़ासकर हमारे के रहमान ख़ान साहब जो MP हैं, उन्होंने एक एनालाइज़ किया और बताया कि जो ये डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान में जो एक मेडिकल डॉक्टर थे, उनको एकदम एजुकेशन में शौक़ कैसा आया कि तो ये जो वालिदा उनकी कुर्बानी दी थी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इतना चाहता है लेकिन वो अंदर दबाव हुआ था, वो जो है डॉक्टर मुमताज़ में उभर के आया है और वहाँ से जो है अल-अमीन मूवमेंट चला है। तो ये बाद में जो है वालिद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 साल प्रो चांसलर भी थे और उसके पहले 5 साल ऑनरी ट्रेजरर भी रहे। तो अल-अमीन मूवमेंट से और वहाँ से निस्बत है, समझो आप, हमारे सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो अलीगढ़ के हैं और अल-अमीन मूवमेंट जो है वहाँ से एक निस्बत है AMU और अल-अमीन मूवमेंट की। और जो भी है, जो भी काम हुआ है, अब्बा हमेशा कह रहे थे जो कैप्टन है, टीम का कैप्टन, उसी को ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन टीम एफर्ट से ही विक्ट्री होती है। तो हमेशा जो है अल-अमीन जो है टीम वर्क से ही हमने जो भी हासिल किया है, टीम वर्क से हासिल किया, अभी भी टीम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो कोई भी लोग जो आते हैं, कुछ अच्छे ख्यालात से आते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी उनको हमारे साथ ले लेते हैं, जल्द जुड़ते हैं, उनके तजुर्बे से हम कुछ इल्म हासिल करते हैं। तो आज भी जो है डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ मैडम हैं, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब हैं, जो भी लोग हैं, सब हमारे ग्रुप में मिल जाएँ, हमको कुछ नसीहत करें, कुछ सिखाएं और हम बढ़ते रहें। ये हमारा पहले से अल-अमीन और टीम वर्क में और कोलैबोरेशन में हमें भी बिलीव करते हैं। और अल-अमीन में जो है हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमें उर्दू को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे प्रमोट। तो तकरीबन हर जगह जी दूसरे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ उर्दू डिपार्टमेंट धीरे धीरे से बंद होते चले गए, लेकिन अल-अमीन में अभी ज़िंदा हैं। तकरीबन हमारे 26 इदारे बिदर में हैं, 26 गुलबर्गा में हैं, जो फुल्ली उर्दू मीडियम है, यानी हर चीज़ उर्दू में है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एक्सेट्रा, पूरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उर्दू मीडियम में आते हैं, टेक्स्ट बुक्स उर्दू में होते हैं, एग्ज़ाम्स उर्दू में होते हैं। बेंगलोर में भी चल रहे हैं। तो हाल ही में हमारा एक केस
याद आया, एक चनपटना में हमारी स्कूल है, तो हमारे अलमीन चनपटना की स्कूल में एक बार मैं अनाउंस किया कि जो लड़की फर्स्ट आएगी स्कूल में उसको PUC का हम फ्री सीट देंगे, कोई भी कॉलेज में पढ़ना जो चाहे वो बच्ची को हम फ्री पढ़ाएंगे, तो वो और जो दूसरे जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं उनको एक दूसरा इनाम देंगे, ऐसा अनाउंस किया। तो एक बच्ची जो है फर्स्ट आई, तो वो हमारे गौसिया में अलमिया PU कॉलेज है रामनगर में, गौसिया का भी मैं ऑनरी सेक्रेटरी हूँ। हमारे गौसिया में 5 इदारे हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, रामनगर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ बेंगलोर में एक गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन है, विच इज़ द सेकेंड ओनली वुमेंस कॉलेज इन कर्नाटका। एक मैसूर में, एक कर्नाटका में, बेंगलोर में है, और एक पॉलिटेक्निक ITI और PU कॉलेज चल रही है। तो ये बच्ची जो है वो गौसिया PU कॉलेज में एडमिशन ले ली। तो एक बार मैं ऐसे राउंड्स में जा रहा था, तो वो बच्ची की टेक्स्ट नोटबुक जो है, दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे थे, उसकी नोटबुक ऐसे नज़र पड़ी, तो उठा के देखा तो माशाल्लाह इतना अच्छा उर्दू लिखी है बच्ची को, जैसे कोई न्यूज़पेपर में प्रिंट आता है इस अंदाज से लिखा है। तो मुझे अभी हम कितने की उर्दू प्रोग्राम किए लेकिन कभी तहरीर पे, हैंड राइटिंग पे तवज्जो नहीं की थी। तो इस बार में जो कोलार में प्रोग्राम हो रहा है 8th और 9th को एंटायर कोलार डिस्ट्रिक्ट में उर्दू प्रोग्राम हो रहा है, कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं सब हमारे स्टाफ पहुंच गए हैं, स्टूडेंट्स को इनवाइट किए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं 2 दिन का। उसमें ये उर्दू तहरीर का भी एक ये किया है ताकि जो हैंड राइटिंग है उसको भी प्रमोट किया जाए। तो ये हुआ। तो माशाल्लाह जो हमारे दादी माँ जो थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे यहाँ पे, उसका नाम था बज़म निस्वान। तो फाउंडर्स मेंबर थे बज़म निस्वान के। तो मैं छोटा था, उसमें बहुत ज़्यादा हमेशा वो उर्दू में ख़त लिखते रहते थे और मैं जाके पोस्ट ऑफिस करना था, किसी को पहुंचाना था, रिप्लाई लेके आना था। तो जब मैं डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ को देता हूं तो यही मेरे दादी माँ का जो अंदाज़ था काम करने का, वही मुझे दिखता है कि जो एक सिंसेरिटी है और सिंप्लिसिटी है, और औरत होने पे भी जो पाबंदियाँ हैं फिर भी उसमें भी जो काम चला रहता है। ऐसे दादी माँ भी बहुत सोशल थे, इतने ख़त लिखते थे और मेरा काम था, मैं छोटा था, साइकिल में जाके पहुँचा के आता था, फिर जवाब भी लेके आता था। तो मुझे वो याद आया। और दूसरी बात यह है, मैं हमारे स्टूडेंट्स, अक्सर मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को ही बात करता हूँ, और जैसे ग्रेजुएशन फंक्शन में जाता हूँ या फुटबॉल के टूर्नामेंट्स जो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब्स को टेक ओवर किया है, तो वहाँ फुटबॉल का जो प्रमोशन हो रहा है और ऐसे प्रोग्राम जाता हूँ। ये शायद ऐसा फर्स्ट प्रोग्राम है जो बड़े लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली मैं हमारे बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि जो मीडिया है, मीडिया में जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो हकीकत नहीं है। हालांकि आज हमारे मुसलमानों का हाल बहुत अच्छा है। तो जो है केरला में ना देखो 6 मेडिकल कॉलेज प्राइवेटली मैनेज बाय मुस्लिम्स, तमिलनाडु में जो वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज नंबर 3 पे है क्रेसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेज बाय मुस्लिम्स। साउथ इंडिया में पूरे एजुकेशन में हमारे समझो इकोनॉमिकली आप देखिए, आप इरफान रज़ाक साहब को राजस्व अवार्ड मिला है, ही इज़ अ बिलियनियर, मोर देन 15,000 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स। सब लोग जो हैं हमारे हालात जैसे मीडिया में नज़र आ रहे हैं जैसा वैसे नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। साउथ इंडिया में ख़ासकर मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी है। जो भी मेहनत करता है, पढ़ता है, सिंसियर है, उसका अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट में हैं, एजुकेशन में हैं, साइंस में हैं। हमारे रिलीजियसली भी जितने भी आज हिम्मत जो बच्चे जो हैं खुद से जो हिजाबी बच्चे खुद हिजाब पहनते हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम कर रहे हैं, एक पूरा उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाए रखा है, कोई भी बच्ची अब हिजाब पहन के जा सकती है, हिम्मत से जा सकती है, ऐसा माहौल बन गया है। तो माशाल्लाह हमारे कौम अब शायद साउथ इंडिया में कभी भी इतने तरक्की पे मुसलमान कभी भी नहीं थे जैसे आज अब हैं। तो जो है तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और बताता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। आज भी जो हमारे बच्चे पढ़ के बाहर जाने के सोचते हैं उनको बताता हूँ कि वहाँ के जो स्टोरीज़ हैं, जो मेरे जो कलीग्स हैं, मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, जो आके बताते हैं कि वहाँ जो अमेरिका में है, US में है, जो अखराजात इतने, जो इनकम बड़ी दिखती है लेकिन अखराजात हो जाते हैं, सेविंग्स कुछ भी नहीं होता और हर काम खुद करना पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ जो इंडिया में हर चीज़ के लिए लोग हैं, हेल्पर। अब जैसे वो एक हमारे ऑफिस प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज के, उन्होंने बताया कि वो उनके बच्चे जो हैं वहाँ US में सेटल हैं, तो उनके बच्चों के ना पोतरा पोतरी के लिए ये जाना पड़ता है। 6 मंथ्स मदर साइड के पेरेंट्स जाते हैं, 6 मंथ्स फादर साइड के पेरेंट्स जाते हैं और उनको देख के पूरा वो काम करके आते हैं। तो यानी हिंदुस्तान के माहौल अलग ही है। तो हमारे बच्चों को ही बोलता हूँ कि
کہیں بھی مت جاؤ، ہندوستان ہی اچھا ہے اور یہاں پہ جو آرام ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تو آج اب جو ہے والد صاحب کا بھی ایک نظام تھا، ایک انداز، ایک سمجھو ایک یہ بنائے تھے پرنسپلس کے 0 to 25 ایئرز آف ایج میں آدمی جو ہے ایجوکیشن اور ایجوکیشن کی تیاری اور کمائی کی تیاری میں لگ جانا ہے، اور 25 to 50 ایئرز میں جتنا بھی کمانا ہے، بزنس کرنا ہے، فیملی ہے، جلدی شادی ہونا ہے، جلدی بچے ہونا ہے، تاکہ جب تک تم 50 ایئرز کے ہو جائے تمہارے بچے ٹینیجرز نہیں ایڈلٹس ہو جائیں، پھر ان کا شادی نکاح فنش کریں، اور اس کے بعد 50 ایئرز کے بعد سلولی اسٹارٹ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی۔ اب اتنے دن سے ہم نے لے رہے تھے، اب میرا بھی وہی ایج ہے، میں بھی 52 ایئرز ہوں، تو یہ بھی میں بھی تھوڑا میرا بزنس اب دور کر دیا ہوں، سب سے دور ہو گیا ہوں، اب زیادہ سے زیادہ قوم کو واپس دینا ہے، کمیونٹی کو واپس دینا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ میرا ہے، یہ والد صاحب کا ہے۔ اور بہت دن کے بعد سمجھو ابا کا بھی قصہ یاد آ گیا ابھی آپ کے ساتھ۔ تقریباً 60 سال کے تھے اور ان کا انتقال جو ہے 1984 ایئرز میں ہوا۔ 60 سال میں انہوں نے خبر بنا دیے تھے، ان کی خبر جو ہے علمین میڈیکل کالج میں ایک چھوٹی مسجد تھی، 250 ایکڑ زمین علمین میڈیکل کالج بیجاپور میں بنائے، ایک چھوٹی وادی جیسی جگہ میں ایک پرانے زمانے کی مسجد تھی، وہاں ان کو بہت سکون مل رہا تھا، تو وہ خبر بھی بنا دیے اور خبر کا پتھر بھی ریڈی کر دیے تھے، ڈیٹ آف برتھ تھا، ڈیٹ آف ڈیتھ وہ نہیں لکھا تھا، ایسا رکھ دیے تھے 60 سال کی عمر میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں یہاں ہسکوٹے میں جو حالات بدلے، پھر انہوں نے آخری ان خواہش تھی کہ علمین ریسیڈنٹ اسکول ہسکوٹے میں ان کو مدفون کیا جائے، کووڈ میں انتقال ہوا، ان کو مدفون کیے، تو وہ پتھر جو ہے خبر کا پتھر وہ یہاں کسی حالت سے بننے نہیں ہو رہا ہے۔ میں بہت کوشش کروں، معمولی چیز کسی کو بول دیا تو بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے، ہمیں جا خود کرنے کا نہیں ہے، کچھ نہیں تھا، پتہ فوراً مجھے بعد میں دن کے بعد خیال آیا وہاں پتھر وہاں پڑے نہ کر کو، پھر بیجاپور کو فون کر کے پوچھا تو تھا وہ مسجد میں پتھر تھا، وہ پھر فون کر کو ہمارے یہاں سے گاڑی بھیج کو وہ پتھر منگا کو وہ یہاں جو ہے سرانے کا پتھر یہاں لگائے ہوں ہمارے ہسکوٹے میں جی۔ تو یہ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی، تو یہ جو ہمارا کام ہے، تو ہم سب تقریباً اسی عمر کے ہیں، وہی ایج کے پہنچ گئے ہیں، اور ابھی کتنے سال جئیں گے اور کہ اللہ کچھ بہتر جانتے ہیں، جلدی کم ہی سال جئیں گے، سب اللہ کے پاس جانا ہے، تو جتنے بھی سال یہاں ہیں قوم کی خدمت کریں گے اور نوجوان کی نسل تیار کریں گے۔ اسی بات سے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ممتاز خان صاحب کی تعلیمی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور آپ کے فرزند ان کی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی تعلیمی شعور پیدا کرنے میں ہمہ تن گوش ہیں۔